Hello everyone. In this video, we are going to discuss on critical path method. The critical path method is one of the very important and powerful tool for project management, right? So in short, we also call it as CPM. Along with critical path method, we have another tool also, what we call it as PERT, PERT, that is Program Evaluation Review Technique. So that we will see little bit on the maybe on the next video, but for the time being, we will see what is the critical path method is and how it is applicable in the project management, because this is very a common tool which is used all across the various stream and industry, right? So this will also help what you is if in case you are critical going for role of critical path PMP method in the program project and management certification is? program. There also you will How need to this study this. And project management is something what we talk is not something which is very new. This is very old. This is something which is used for planning, scheduling, and monitoring and controlling as well. But it's been few years back when it has been used majorly in major of the projects where it has been utilized. Now, broadly, that as already said, we can classify them into two categories. Number one is critical path method, and second is project evaluation review technique PERT. तो दोनों ही टेक्निक जो है वो आपके ऑपरेशन रिसर्च में भी यूटिलाइज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होता है, बहुत सारे फंक्शनैलिटी जो कि आपके प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग है ना। वन बाय वन हम दोनों टेक्निक्स को इवेलुएट करेंगे, सीखेंगे. द फर्स्ट इज we need to understand what is the role and importance. Now, either it is PERT, either it is CPM. दोनों ही नेटवर्क बेस्ड डिज़ाइन है जो कि मेरे पूरे सिस्टम में पूरे प्रोजेक्ट का क्या प्लान है, कैसे असिस्ट करेंगे, कैसे उसकी शेड्यूलिंग करेंगे और मेरी सारी एक्टिविटीज़ मिल गई टोटल टाइम कितना कंज्यूम करेगा, इन सारी चीज़ों का एक समरी रिपोर्ट जो कि हम कह सकते हैं हमें जनरेट होता है CPM और PERT के थ्रू, राइट. एंड दैट इज़ वेयर we can also very easily identify bottlenecks and critical activities. Now, what are the bottlenecks are and what are the critical activity means? A bottleneck एक तरह का होता है इस रुकावट, right? Something which restrict your activity, the performance of your system. So project एक system की तरह होता है जो कि सारे एक event एक को conduct करना है, तो उस पूरे event के कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा रूट है, कौन सा पाथ है जो उस पूरे एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. सो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर को हम कहते हैं बोटलनेक. सर इसीलिए हम उन सारी एक्टिविटीज़ को जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मे बी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, सो दैट दोज आर योर क्रिटिकल एक्टिविटीज़. नाउ दीज क्रिटिकल एक्टिविटी एंड बोटलनेक्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड CPM एंड PERT, सो दैट हम इनको अगर हम एलिमिनेट करें तो हम टोटल टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जिसको हम कहते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट. नाउ दिस इज अ ब्रॉडर स्ट्रक्चर, बैकबोन स्ट्रक्चर व्हाट वी यूज. So that is what we call it a phase. The first phase for CPM is always define your project activities कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, किस एक्टिविटी के बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा. Based on those activity chart, we need to prepare the network diagram. So the network diagram, this is general structure what we can use कि पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, right? And then is calculate network calculation. Network calculation is basically to identify कि मेरा critical path कौन सा, critical activities कौन सी है. यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास multiple routes हैं. यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है. अब इस ओरिजिन से डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते, 3 रास्ते हैं. सो इन तीनों रास्ते से कौन सा रूट सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा रूट सबसे ज़्यादा कॉस्ट इंकर करेगा और कौन सी एक्टिविटी जो कि मेरे पूरे सिस्टम के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है. सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग नेटवर्क कैलकुलेशन.
and then in the last is a time scheduling. So these are basic structural diagram what we can use for. Now moving into the first part of your PERT and CPM, that is the CPM, critical path method. Now how this critical path methods helps in and how what we need to do. So basically it is a sequence of activities between the project start and finish that take the longest time to complete, right? As we discussed already, the route which is consuming the maximum time, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है एज वी नो कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा. सो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कि आई एम सिटिंग इन टू मुंबई एंड आई नीड टू रीच आउट टू दिल्ली, तो देर कुड बी multiple possible routes can be. Either I can go from via Jaipur, I can then Delhi, or maybe I can go from via MP or anyway, right? So I need to identify which route is going to be more helpful, more precise, and more correct. Now, right? So these are your based on some mathematical calculations, right? And these where also is not something which is new. It has been already been used in your chemical plants, right, in the long back in the 1950 itself, and it was developed by Cayley and the Walker, right? So where they have used these techniques to assist in the chemical factory, right? Also these are not only in the maintenance project but in any number of project where it can be utilized in the frame. Now moving forward, now we can see critical path method. Here what we have is activities, and we know the exact time, how much time is required by each activity. So that is why we call these as deterministic activity duration, because we project an approximately, or maybe we are certain about the time duration which is required by each activity from the beginning to the end, right? So that is why we also call it as CPM as deterministic activity or deterministic model, wherein to construct these CPM there's few things, few essential techniques which is required to construct them. Number one is either we need to make first is we need to prepare a work breakdown structure, and then we need to put all the duration or the time which is required for each activity in those breakdown networks. Also we will identify which activity is depending on the which next activity. For example, if I need to have a 5 set of activity 1, 2, 3, 4 and 5, so it could be possible that activity 2 requires the completion of 1, while activity 4 required the completion is having no influence on the completion of 2, but 3 is also having no influence on the completion of 2. It is the minimum requirement which is required is the completion of activity 1. Now there are few terminology which is commonly faced in the CPM where the most of the confusion arises. Now the first one is how we represent the activity, and then what activity is. In simple term, activity क्या होती है? टास्क जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? जो कि एक टास्क जो आपका रिसोर्स कंज्यूम करेगा. रिसोर्स कंज्यूम करेगा तो उसमें कॉस्ट भी इंकर होगा, टाइम भी इंकर होगा. So how we are going to represent this? We are going to represent these activity by a arrow. So arrow always indicates in CPM as your activity. Now what is event? So event is indicated by a circle. So how it is represented? Now these circle what we are indicating with 1 and 2, these points are my events. So that these junction nodes, node 1 and node 2 indicates your event, while these arrow indicates your activity, that is activity A. So further there is another term which we will interface is dummy activity. So dummy activity क्या होती है?
सो डमी एक्टिविटी बेसिकली इज एक ऐसा पाथ, एक ऐसा मूवमेंट जो आपका कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता, जो आपका कोई कॉस्ट कंज्यूम नहीं करेगा, राइट, कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करेगा, बट एक एक्टिविटी से पहले किसी दूसरी एक्टिविटी का होना, कंप्लीट होना जरूरी है, राइट। सो ऐसी पोजीशंस पे हम उस मूवमेंट को अगर हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज ए डमी एक्टिविटी विच इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनी टाइम, जिसका कोई भी ड्यूरेशन नहीं होता है। ड्यूरेशन इज लाइक जीरो, cost which is incurred is zero, resource which is utilized for the dummy activity is zero, right. Further, how these dummy activities are been utilized, that we'll see in the next slide. Next what we have is a parallel activity. Parallel activity का क्या मतलब है? It means that there should not be a kind of a circle of activity. That means एक पॉइंट जहाँ ख़त्म हो रहा है, इफ़ यू सी दिस इज द बिगनिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्टिविटी, नाउ दिस इज अ बिगनिंग पॉइंट वेयर एट वन पॉइंट इट इज स्टार्टिंग एंड अनदर पॉइंट इट इज गेटिंग ओवर. सो इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज एंडिंग पॉइंट, वेयर इट इज अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट. सो इफ आई कॉल दिस एज पोजिशन नंबर 1, this is as 2, so this is as 3 and this is as 4. so 3 और 4 जो एक्टिविटी है वो इस 1 और 2 के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे को इंटरफेस कर रहा है. सो कोई भी ऐसा अगर सर्किल आपके नेटवर्क डायग्राम में बन रहा है जहाँ पे सारा मूवमेंट आप एक जगह गोल गोल घूम रहा है, जिसको हम कहते हैं, सो वो परमिसिबल नेटवर्क डायग्राम में नहीं है. देन इज हाउ वी इंडिकेट विद द पाथ्स एंड द क्रिटिकल पाथ. पाथ मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के जो वेरियस ऑप्शंस है, ऑल दीज आर योर पाथ्स ऑफ ऑल द एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ इन दिस इज कि कौन सा रास्ता, कौन सा रूट जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. सो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग ये है. नाउ again we that is one way you can identify. Second is with the help of the float and slags float we will can identify in. Now these are again and with the help of slag we can identify in legends which we generally utilize in your network diagrams. Now again what I am saying is this circle indicates your event, a straight line indicates your activity, dotted line indicates your dummy activity. Now there is a one square box and one triangle. Now square box जहाँ भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इंडिकेट करेगा आपको ES and EF. Now ES क्या है? ES is your early start time and EF is your early finish time. And triangle will indicate, जहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, ड्यूरेशन की लिखेंगे, is indicates your LF. LF is your latest finish time and LS indicates your latest start time. The few more symbols what we are going to utilize. Now the few points. Number one, here what we call, if you see, we call it as burst event. Now what is bursting? जैसे कहते हैं बम फटना, right? So ये क्या कह रहा है कि B और C के एक्टिविटी होने से पहले, वो तब तक होने से पहले ए का कंप्लीट होना जरूरी है. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा बी और सी स्टार्ट नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स एक का कंप्लीशन पॉइंट जो है वो दो का जो क्या पड़ रहा है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है. सो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं ब्रस्ट इवेंट. उसके बाद आता है आपका मर्ज इवेंट. मर्ज इवेंट का मतलब जब दो इवेंट फिनिश होंगे तभी एक तीसरा इवेंट स्टार्ट होगा एक जंक्शन पॉइंट से, एक नोड से. सो जब दो इवेंट आके एक नोड पे फिनिश होंगे तब वहाँ से क्या निकलेगा, तीसरा एक्टिविटी स्टार्ट होगी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज मर्ज इवेंट. And another term which is we call it as dangling events. What is these dangling events are? Dangling event का मतलब क्या है कि एक इवेंट A देख रहे हो, दूसरा है B,
तीसरा है आपके पास सी। now इन तीनों का ए बी और सी, इनका कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा। सो अगर आपकी इवेंट स्कैटर्ड है जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है प्रोजेक्ट में को कंप्लीट करना। सो ऐसे मूवमेंट जहाँ का हम इसका आगे ओरिजिन कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट्स को हम अलाउ नहीं करते हैं सीपीएम में। एंड देन इज what we said is already stated is dummy activity. so इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। now if you see यहाँ पे इवेंट एक है A, that is event A, event B, event C और event D। so हम डमी एक्टिविटी कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। एज्यूम करिए कि एक्टिविटी A B C D और इसके आगे कोई भी एक्टिविटी है। सो B को स्टार्ट करने के लिए मुझे A का कंप्लीट होना ज़रूरी है। सो B स्टार्ट कब हो रहा है, जब A कंप्लीट हो गया। नाउ C और D जब एक्टिविटी अगर हम देखें तो D कब स्टार्ट होगा, जब C और A दोनों कंप्लीट हो। अगर यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस नहीं होती, इसका मतलब ये होता कि D के स्टार्ट होने के लिए ए और बी का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे अगर ये डमी डॉटेड लाइंस है, इसका मतलब ये है कि डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। बट ए से और डी के लिए स्टार्ट करने के लिए ए का कोई भी रॉ मटेरियल मुझे नहीं चाहिए, बट उस एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है। तो अगर इसका कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब कि इस डमी एक्टिविटी के लिए कोई भी कॉस्ट इंकर नहीं हो रहा है, कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। सो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं डमी एक्टिविटी। वी विल मूव फॉर so far we have seen various dummy activity possibilities. So this is another representation of dummy activity. Now in this particular activity, if you see the first upper part, the first one, what it indicates कि activity 3 जो नोड 3 आप देख रहे हैं, ये नोड 3 के आगे कोई भी possibility तभी हो सकता है जब A और B दोनों ही एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी हो, बट A का आगे कोई मूवमेंट नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी विल रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ A एंड B बोथ बाय यूजिंग ए डमी एक्टिविटी C with a dotted line indicating node number 2 and indicated the node number 3। क्यों? क्योंकि 3 पे क्या है, आपका एंड जंक्शन है। नाउ अगर नीचे वाला डायग्राम देखिए, द बॉटम वन, सो व्हाट दिस इंडिकेट्स कि एक्टिविटी बी को कंप्लीट स्टार्ट होने के लिए जो कि नोड 1 से है, स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए कि ए कंप्लीट हो गया हो, बट एक्टिविटी क्या ये पॉसिबल है? नो। क्योंकि इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से क्या आपको मिल रहा है कि सी का भी कंप्लीट होना जरूरी है एक्टिविटी बी के स्टार्ट होने के लिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक डमी एक्टिविटी से, दैट इज नोन एज डी। सो विच दीज डमी एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू इंकर एनी कॉस्ट, नॉट गोइंग टू इंकर एनी रिसोर्स, नॉट गोइंग टू इंकर एनी टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि बी के स्टार्ट होने के लिए ए और सी का कंप्लीट होना जरूरी है। तो जब भी हम यहाँ पे टाइम कंज्यूम दिखाएंगे कि बी को कब स्टार्ट हुआ, तो जितना टाइम यहाँ पे ए ने कंज्यूम किया है उतने ही टाइम। नाउ वी हैव सम रूल्स विच नीड टू बी फॉलोड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क। तो पहला रूल क्या है कि हर एक एक्टिविटी के लिए एक ही लाइन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 या 3 एक्टिविटीज़ हैं, सो ए के लिए फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, सो ए के लिए एक डिफरेंट लाइन होगी, बी के लिए डिफरेंट लाइन होगी और सी के लिए डिफरेंट लाइन होगी, विच मीन्स एक ही एरो 2 एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रूल नंबर 2,
राइट, कि हर एक एक्टिविटी जो आर्क जो हमने बनाया है इसको हमें क्लियरली नोड से डिफाइन करना पड़ेगा. नोड मीन्स द सर्कल पॉइंट्स, कि इस पॉइंट ये पहले पॉइंट से स्टार्ट हुआ और किस पॉइंट पे वो एंड हुआ है. So those nodes need to be defined. Now, third rule is we need to maintain a correct precedence relationship. That means कि किस एक्टिविटी से ठीक पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या फिर आगे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी. सो इनका एक क्लियर रिलेशनशिप, एक मूवमेंट चार्ट हमें पता होना चाहिए. देन ओनली वी कैन प्रिपेयर ए better and correct and precise network diagram, right? So that is what we mean with that. We need to know immediately preceded the current activity, and then which all activity need to be completed before the start of the current activity. मतलब अगर मेरे पास A, B और C है तो B से पहले कौन कौन सी एक्टिविटी या C से पहले कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होना ज़रूरी है. या मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 15 एक्टिविटी जो कि परफॉर्म किया जाएगा फ्रॉम स्टार्ट ओरिजिन से लेकर एंड पॉइंट के बीच में. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक इवेंट है बीच में, तो से पहले कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी ज़रूरी है और के ठीक बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, राइट. सो इसका एक क्लियर डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द रूल्स टू डेवलप ए नेटवर्क डायग्राम. तो जो बाद की एक्टिविटी है वो हम पहले नहीं बना सकते और जो पहले की एक्टिविटी है हम उसको बाद में शो नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाइल यू आर रीडिंग द टेबल एंड रीडिंग द मूवमेंट ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच हैज बीन परफॉर्म. And there is two different kind of the movement pass what we use in developing the network diagram. पहला है forward pass. Forward pass basically हम utilize करते हैं दो term, एक early start एक early finish time. Now early start और early finish time से क्या मतलब है कि कितनी जल्दी कोई एक्टिविटी है जो कि स्टार्ट हो जाएगी और अर्ली फिनिश का मतलब है कितने ड्यूरेशन के बाद टोटल टाइम उस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो चुका होगा. सो दैट इज व्हाट वी मीन विद द अर्ली फिनिश टाइम. नाउ लेट्स एज्यूम कि अगर आपके पास किसी एक नोड पे आपको दो एक्टिविटी परफॉर्म हो के आप दो रास्ते से आप आ रहे हो. अब आप ये कह रहे हो कि इसका तो स्टार्ट टाइम चलो ठीक है जो है वो है आपने लिख लिया, इसका स्टार्ट टाइम अपना ही है, बट इसके बाद जो एक्टिविटी आएगी उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा. ना स्टार्ट टाइम वो तभी हो सकता है इन दोनों में. लेट्स से मैं कह रहा हूँ इसका 4 आवर चाहिए, दूसरे को कंप्लीट करने के लिए 6 आवर चाहिए. तो अगली जो एक्टिविटी है यहाँ पे ये तभी स्टार्ट हो पाएगी जब ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो. इसका मतलब ये हुआ. तो कब ये कंप्लीट स्टार्ट होगी जब दोनों एक्टिविटी, तो कम से कम 6 मिनट, क्योंकि 4 मिनट अगर आपके बाद अगर आप नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगला एक्टिविटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 मिनट और चाहिए. सो दैट मीन्स ये जो एक्टिविटी है फर्दर वाली ये तभी स्टार्ट हो पाएगी जब टोटल टाइम 6 मिनट हो चुका होगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो फिनिश टाइम है वो क्या, अर्ली फिनिश टाइम क्या है वो क्या होगा, 6 मिनट्स का होगा. और इस एक्टिविटी का अर्ली, यही जो पिछली एक्टिविटी का फिनिश टाइम था वो इस एक्टिविटी का क्या हो जाएगा, अर्ली स्टार्ट टाइम. और यहाँ पे जितना टाइम कंज्यूम होगा वो इसका फिनिश टाइम हो जाएगा. नाउ कंसीडर द मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू. सो दैट इज व्हाट वी हैव कंसीडर्ड. यहाँ पे 4 मिनट्स यूटिलाइज हुआ था, दूसरे में 6 मिनट, तो मैक्सिमम कौन सा था 6. सो इसका फिनिश टाइम मैक्सिमम कौन सा हम आगे का नेक्स्ट कंसिडर करेंगे 6 मिनट्स. Now if you see this particular diagram, जहाँ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर, these square boxes always represent your forward pass and the value of early start and early finish we are going to write in these square boxes. The second is backward pass. Now as we have know that forward pass हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से. कहाँ तक हम जाएंगे, एंड पॉइंट तक. बैकवर्ड पास में उसका ठीक उल्टा होगा. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, टाइम का कैलकुलेशन एंड पॉइंट से, और कहाँ पे आकर रुकेंगे, ओरिजिन पे आकर रुकेंगे. सो जो उल्टा मूवमेंट है, अपोजिट मूवमेंट है जो,
टाइम कैलकुलेशन का, वी कॉल इट एज बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में हमने वर्ड यूटिलाइज किया था अर्ली स्टार्ट टाइम। बैकवर्ड पास में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। दैट मीन्स कि कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम है जहाँ पे हम बफर कर सकते हैं, कब हमारा कोई एक्टिविटी जहाँ पे मैक्सिमम डिले कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कैलकुलेट। सो हमने देखा कि हमने फॉरवर्ड पास में हमने मैक्सिमम टाइम को कंसिडर कर रहे थे, और जब हम बैकवर्ड पास में आएंगे, जब हम अपोजिट मूव करेंगे, वी विल कंसिडर द मिनिमम टाइम। Further, one last point before we move into the network diagram representation and the calculation is to understand a float. Float क्या है? फ्लोट के अगेंस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्लोट और स्लैग दो ऐसे टर्म है, दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं। सिर्फ फर्क ये है कि फ्लोट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड में यूज करते हैं। स्लैग जो है वो इवेंट बेस्ड है, इसलिए हम उसको पर्ट में यूज करेंगे, प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक में। नाउ प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक क्या है और स्लैग कैसे निकालते हैं हम देखेंगे मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। For the time being, we'll find out what is float and activity is. So float is basically the difference between two factors. Number one, early start and latest start time. या तो हम early start time ES minus latest start time का जो difference है उसको हम consider कर ले. So that will give us the float. दूसरा हम identify कर सकते हैं इसको अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए फ्लोट। सो बेसिकली कौन इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्टिविटी, किसी भी नोड पे जो जंक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम इवेंट को एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं। सो अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं डिले की, सो दैट डिले time gap is known as my float. Practically we will see, while we will understand while we calculate in the next slide. But before that we need to see what are the various steps which is there in the critical path method. Now the first step is time calculation using the forward pass. सो दैट मीन द फर्स्ट नोड, जो सबसे पहला नोड है जहाँ से चीज़ें ओरिजिन कर रही हैं, उसको हम कहते हैं स्टार्ट नोड। नाउ स्टार्ट नोड पे हमेशा मेरा टाइम कितना हुआ है? 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया, तो मेरा अर्ली स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा? 0। नाउ जब वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी, जो कि नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसको स्टार्ट होने से पहले जब एक्टिविटी मेरा ए कंप्लीट हो रहा है, तो जितना मेरा स्टार्ट टाइम क्या है? 0, और टाइम फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 मिनट लिया, तो मैं उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर दो 0 + 4, दैट मीन्स फिनिश टाइम विल बी 4 मिनट और 4 आवर और 4 डेज, जिस भी टर्म्स में आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट इज योर अर्ली स्टार्ट एंड द अर्ली फिनिश टाइम। सो सिमिलरली हर एक एक्टिविटी के लिए हमें अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट निकालना है। उसको निकालने के बाद उसको हमें वहीं पे लिखना है नेटवर्क डायग्राम में, राइट। एंड देन उसके बेसिस पे अगर किसी उसके बेसिस पे हम एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक मूव करेंगे। नाउ अगर किसी भी नोड पे 2 डायरेक्शन से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो जिस भी डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होके आ रहा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि आप अगर ये डायग्राम देखें, तो फॉरवर्ड पास का मतलब क्या है? इट इज़ ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द स्क्वायर बॉक्सेज। दैट मीन्स वी आर मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम द junction origin point 1 and moving to the node number 6, that is your end point, right? And backward pass we will see further. Now always remember these square boxes will represent you the time duration which you need to mention from the movement which is starting from origin to the end point is 1, and activity at A is being performed. Activity A, how much time it consumed? 5 minutes. Now at node 0, 1, we have total time consumed is 0. So after the completion of activity A, we will reach up to the node number 2, right?
Now how much time which has been total time, what is the early finish time is 0 plus 5 which is equal to 5. Now similarly if you see there is one more activity which is starting from the node number 1 is the activity B. Now B कहाँ पे complete होके मीट कर रही है? नोड नंबर 3 पे. Now नोड नंबर 3 पर पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 6 मिनट. बट अगर आप नोड नंबर 3 देखिए यहाँ पे दो जगह से रास्ते आ रहे हैं, एक बी से दूसरा सी से. तो सी का ओरिजिन कब होगा? कितने मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद. तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ यहाँ पे? 3 मिनट एक्स्ट्रा. तो टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 3 दैट इज 8 मिनट. सो अगर मैं इस नोड नंबर 3 पे आ रहा हूँ वाया नोड नंबर 2 तो मुझे टोटल टाइम कितना चाहिए? 8 मिनट चाहिए. और अगर मैं डायरेक्टली वाया बी से आता तो मुझे कितना चाहिए होता? 6 मिनट. तो विच इज लार्जर मैक्सिमम? 8 मिनट. सो व्हाट विल राइट हियर इज दैट नोड इज फॉरवर्ड पास 8 मिनट. दैट मीन्स नोड 3 से आगे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो कितने मिनट के बाद हो सकती है? 8 मिनट के बाद हो सकती है. सो सिमिलरली एक्टिविटी एफ और एक्टिविटी ई ये दोनों ही एक्टिविटी 8 मिनट पे स्टार्ट होगा. सो इफ यू सी देन फर्दर जंक्शन नंबर 4. सो जंक्शन नंबर 4 पे जो मेरा टास्क स्टार्ट हुआ कितने मिनट पे? 5 मिनट पे. 5 मिनट पे स्टार्ट हुआ और मेरे टाइम कितना कंज्यूम हुआ? 8 मिनट. 8 प्लस 5 13 मिनट विच इज बीन कंज्यूम. नाउ इफ यू सी द जंक्शन नंबर 5. जंक्शन नंबर 5 क्या है? जंक्शन नंबर 5 is the movement from where it is coming from the two nodes. One is E and one is dummy activity. So this E activity is starting at 10, starting at 8 and consuming 2 minutes. The total time at which these for the activity we can say as 8 plus 2 10. But no, क्योंकि नोड नंबर 5 पे और कहाँ सा रास्ता आ रहा है जो कि नोड नंबर 4 से होके आ रहा है जो कि एक डमी एक्टिविटी है. और नोड नंबर 4 कितनी देर के बाद कंप्लीट हो रहा है? 13 मिनट्स के बाद. राइट 13. सो दैट मीन्स नोड नंबर 5 के आगे की जो एक्टिविटी है वो 13 मिनट्स के बाद ही स्टार्ट हो सकती है. अभी आर वी गेटिंग दिस? नाउ द लास्ट नोड नंबर 6. नोड नंबर 6 में आपको 3 पॉइंट्स हैं. एक F के रूट से आ रहा है, एक H के रूट से आ रहा है और एक G के रूट से आ रहा है. नाउ इफ यू सी अगर जो F के रूट से आ रहा है वो स्टार्ट हुआ था 8 मिनट पे और 11 मिनट कंज्यूम हुआ. तो टोटल कितना हो गया? 8 प्लस 11 19. एंड जो कि रूट एच आ रहा है रूट नंबर 5 कहाँ कितने पे स्टार्ट हुआ? 13. 13 प्लस 12 इट इज 25 मिनट विच इज रिक्वायर्ड. एंड इफ यू सी द मूवमेंट फ्रॉम 4 स्टार्ट हुआ था कि आगे एक्टिविटी स्टार्ट हुई यहाँ पे 13 मिनट्स के बाद कंज्यूम हुआ 1 मिनट. सो दैट इज योर 13 प्लस 1 दैट इज योर 14. सो आउट ऑफ 19 25 14 which is the maximum is 25. so जो इवेंट नोड 6 पे जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कितने मिनट के बाद कितने टाइम के बाद होगा? 25 के बाद. so that is your movement of your forward pass. now next what we have is backward pass. now backward pass में हम सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा हमने फॉरवर्ड पास में किया है, बट सिर्फ 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. पहला कि जो हमारा टाइम की काउंटिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में होगा. रिवर्स ऑर्डर का मतलब हम स्टार्ट करेंगे अब एंड पॉइंट से टाइम की काउंटिंग और उसको घटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कहाँ तक? ओरिजिन तक. और दूसरा जो पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो है नोड पे. अगर हमने फॉरवर्ड पास के केस में देखा तो नोड पे हम मैक्सिमम टाइम को कंसिडर कर रहे थे, बट बैकवर्ड पास में जब हम रिटर्न आ रहे होंगे तो हम किसको कंसिडर करेंगे? मिनिमम टाइम को. सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम.
सो लेटेस्ट फिनिश जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें से हम जितनी एक्टिविटी ने टाइम कंज्यूम किया है कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन केस ऑफ लेटेस्ट start time. Now if you see this particular diagram, again the same diagram, here the triangles which are being used, that means if you see this triangle, so movement from triangle to triangle. Now पहले हमने फॉरवर्ड पास में जो मूवमेंट टाइम कैलकुलेशन था वो हमने किया था स्क्वायर बॉक्सेस में. यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेशन किस पे करेंगे, ट्राइंगल्स में. हाउ वी आर गोइंग टू डू इन ट्राइंगल्स. नाउ इन द फॉरवर्ड पास हमने देखा कि हमें टोटल टाइम चाहिए 25 मिनट्स. सो वी विल राइट द सेम 25 इन माई लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इन द एंड नोड. जो यहाँ का 25 है वही 25 लिख दिया. अब इस 25 से हम रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे, मतलब नोड नंबर 6 से नोड नंबर 5 पे जाएंगे, नोड नंबर 6 से नोड नंबर 3 पे जाएंगे, नोड नंबर 6 से नोड नंबर 4 पे जाएंगे. नाउ 25 मिनट इज वी आर स्टार्टिंग. हमें अब बैकवर्ड पास में क्या करना है, अब टाइम माइनस करना है. फॉरवर्ड पास में हम क्या करते थे, प्लस करते थे. सो 25 माइनस 11, ये 11 है यहाँ पे, तो 25 माइनस 11 करेंगे तो अब कितना हो जाएगा. सो 25 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा. सो इट विल गिव अस 14. बट नोड नंबर 3 पे आने के दो रास्ते, एक एफ से एक ई से है. तो उससे पहले हमारे पास ई से आने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, नोड नंबर 5. नोड नंबर 5 पे जब हम रिटर्न आएंगे तो एक ही रास्ता है, दैट इज थ्रू एच. So 25 minus 12 which is equal to 13. So नोड नंबर 5 पे हमारा क्या आ गया, हमारा 13 आ गया, राइट. नाउ 13 माइनस 2 क्या हो गया, कितना आया, 11. सो 14 और 11 में से कौन सा छोटा है, बट ऑब्वियस 11 छोटा है. तो हमने यहाँ पे हमारा बैकवर्ड पास से यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 11. नाउ अब हम आएंगे नोड नंबर 4 पे. नोड नंबर 4 पे आने के दो रास्ते हैं, पहला डमी एक्टिविटी से, दूसरा वाया जी से. सो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24. और 13 माइनस 0, डमी एक्टिविटी में तो नोड नंबर 5 पे 13 है, 13 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 13. नाउ 13 इज स्मॉलर देन 24, सो व्हाट वी विल राइट इज 13, right. Similarly we will move to the node number 2 now. नोड नंबर 2 पे आने के भी दो रास्ते, एक D से और एक C से. दैट मीन्स अगर हम चेक करें पहले D से, तो यहाँ पे हमारे पास था कितना, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट विल कम क्लोज टू 5, राइट. एंड इफ ए कमिंग थ्रू सी से कितना है यहाँ पे हमारा 11 माइनस 3. सो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इट विल गिव यू द वैल्यू 8. नाउ 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारे वैल्यू कितनी आई, 8. अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5. सो व्हाट वी आर राइटिंग ओवर हियर इज 5. नाउ मूव बैक टू लास्ट नोड, दैट इज स्टार्टिंग नोड. जो हमारा रिवर्स ऑर्डर में हम जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स फ्रॉम एंड पॉइंट टू ओरिजिन. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बैकवर्ड पास इज. नाउ नोड नंबर 1 पे आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक बी से और एक ए से. अगर मैं ए से रिटर्न आ रहा हूँ, यहाँ पे कितना टाइम था, 5 माइनस ड्यूरेशन 5 इज इक्वल टू 0. अगर मैं बी से वापस आता हूँ तो 11 माइनस 6 विच इज इक्वल टू योर 5. तो 5 छोटा है या फिर 0, बट ऑब्वियस है 0 छोटा है. तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी पुट इन द फॉर्म ऑफ अ बैकवर्ड पास. नाउ दिस इज वॉज बैकवर्ड पास और योर स्टेज नंबर 2. तो पहला स्टेट क्या था, गो फॉरवर्ड पास. सेकेंड स्टेप, गो बैकवर्ड पास.
Now point is, what is step number 3? Step number 3 is to find out the float. How we are going to find out the float is latest start time minus early start time, or latest finish time minus early finish time. Right, so this is how we can find out the float. अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? So that we can see, if you see the one particular diagram here, so what we are here looking into now, looking what is, if the bottom one is, what was the bottom one is? Bottom one is your early start time, and on the triangle it is latest start time. So we can say that this is my ES and this is my LS. So we need to take the difference between ES and LS. So यहाँ पे देखो कोई difference है 0 0, दो both are same, कोई difference है नहीं. So that means that will be the path of your critical path. यहाँ पे कोई difference है नहीं है, यहाँ पे कोई difference है, दोनों में बिल्कुल है. कितने का difference है? 3 का difference है. Now नोट नंबर 4 पे देखेंगे, नोट नंबर 4 पे कोई डिफरेंस है नहीं है. कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 0. नोट नंबर 5 पे देखिए, नोट नंबर 5 पे कोई डिफरेंस है नहीं है, दैट इज डिफरेंस इज 0. नोट नंबर 6, एनी डिफरेंस? नो. सो we have identified, so these differences between early start and latest start, these are known as my float, right? So these differences are known as my float. Now इस float diagram से हम कैसे बताएंगे मेरा critical path कौन सा है? Now जिस नोड पे ये सारे फ्लोट की वैल्यू 0 है, जैसे कि नोड नंबर 1 पे फ्लोट की वैल्यू 0 है, 2 पे 0 है, 4 पे 0 है, 5 पे 0 है और 6 पे 0 है. सो दैट मीन्स मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? एक्टिविटी नंबर ए डी. मुझे 5 पे जाना है, 4 के बाद मैं डायरेक्टली जा नहीं सकता. सो डिस्टर्ब एक्टिविटी एंड एच. तो मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? नोड नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6. So these are my critical path. So what is the maximum duration which is required here is, so 5 plus 8, how much? 13. 13 plus 0 remains 13, and then 13 plus 12, 25. So that is what we call it as, what are the activities critical path is? A, D and H. That is A, D, this is dummy, so no representation, and H. So A, D, H is my critical path, and the total maximum time which is required to complete any of that particular project is 25. Either it's minute, hour, day, जिस में terms में हम calculate कर रहे हैं. So that is how, what is the role of float in identifying the critical path. Now example and the maximum duration which is required. I wish you should take the note of this particular question, so that parallelly you can do, so that you can parallelly better you can learn. Now यहाँ पे हमारे पास activities हैं A, B, C, D, E, F and G. Next column में हमारे पास है immediate predecessors. So immediate predecessors का क्या मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, चाहे ए बी सी डी है, उससे ठीक पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्टिविटी जो यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है हमारे पास, इन एक्टिविटीज़ को कब स्टार्ट होगा? जब ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल ए से पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी, मतलब ए सबसे पहला एक्टिविटी जो कि परफॉर्म होगा. बट बी को स्टार्ट करने से पहले मुझे ए को कंप्लीट करना पड़ेगा, और सी को भी स्टार्ट करने कब किस जगह से स्टार्ट होगा? जब मेरा ए कंप्लीट हो जाएगा. तो दोनों एक ही नोट से स्टार्ट होंगे. सिमिलरली डी विल स्टार्ट वेयर सी विल एंड. ई विल स्टार्ट जहाँ पे मेरा डी कंप्लीट होगा. मेरा एफ कहाँ से स्टार्ट होगा?
जिस नोड्स पे बी और ई दोनों आके कंप्लीट होंगे उस नोड से मेरा एफ स्टार्ट होगा, और जी कहाँ से स्टार्ट होगा, जब जिस नोड पे मेरा एफ आके कंप्लीट होगा। एंड द लास्ट कॉलम इट इज गिवन एज कंप्लीशन टाइम। दैट मीन्स ए एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 वीक की ज़रूरत है, बी के लिए 3, सी के लिए भी 3 वीक चाहिए, डी के लिए 4 वीक्स, ई के लिए 8 वीक, एफ के लिए 6 वीक, जी के लिए 2 वीक. So these are the time which is required to complete all these activities. Now we will see how we can develop the network diagram for this particular question and how we can find out critical path. Now आप ऊपर आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज़ क्या है और उससे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या है. तो सबसे पहला क्या है, दैट इज़ योर एक्टिविटी ए. सो एक जंक्शन पॉइंट है 1, राइट. इस जंक्शन पॉइंट से हमने सबसे पहले एक्टिविटी क्या निकाली, जिसको हमने नाम दिया ए. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, 2. दिस 2 indicate the duration of the project. Now A should always be under the node, so that is represented by a circle which is a node. Node 1 is the origin point which is starting with the activity A, which is consuming a duration of 2 weeks. Now further it is ending at the node, किसी node पे end होगा, so we call it as node number 2. Now we will move to the second. Now B will start only when the activity A is complete, right? So that is what we can name it, activity B. This is how we represent the position of the activities on the center of the arrows. Now B is consuming how much duration is 3 minutes. So that is what we are writing in the bracket, 3 minutes, 3 weeks. Now apart from B, there is one more activity which will emerge from A. That is what we call it as, the given is C, right? तो C भी तभी स्टार्ट होगा जब मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, उसी नोड से स्टार्ट हो रहा है जिस नोड पे एक्टिविटी A कंप्लीट हो रहा है. सो C कितना ड्यूरेशन है, 3 weeks. सो वी हैव नेम दिस नोड, क्योंकि C जब किसी पे कंप्लीट होगा तो उस नोड को हमने क्या दे दिया है, नोड नंबर 3. Now what it is, activity number D. D will start from the node where C has been completed. जिस नोड पे C complete हुआ है उस नोड से D क्या होगा, स्टार्ट होगा. ड्यूरेशन इज 4 weeks. Now if you see the next one, E will start from the node where D is being completed. D number 4. Node number 4. Now what is the next activity is E. E will start from the node D is been completed. D is been completed. ना यहाँ पे हमें थोड़ा डाइसी रहता है कि हमें एक स्टेप आगे भी देख के चलना पड़ता है. आगे अगर हम देखें तो F जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट पे B और E दोनों आके मिल रहे होंगे. तो हम जो हमारा E जो हमने नोड नंबर 4 से स्टार्ट किया है उसका एंड पॉइंट हम कहाँ ले आके मिलाएंगे, उस नोड पे मिलाएंगे जिस नोड पे B आके कंप्लीट हुआ है. सो दैट इज व्हाट वी गिव इट एज E. So, कितना ड्यूरेशन है, 8 minutes का. फर्दर अगर आप देखें तो F जो एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उस नोड से स्टार्ट होगा जिस पे B और E दोनों आकर एंड हो रही है. दैट इज नोड नंबर 5, राइट. नाउ हाउ मच टाइम इट इज कंज्यूमिंग इज 6 weeks, राइट. सो F इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड नंबर 5. नोड नंबर 5 से स्टार्ट हुआ जहां पे एक्टिविटी बी और ई दोनों कंप्लीट हुए हैं, और एंड कहां पे होगा, एफ एक्टिविटी एंड कहां होगा, जी के स्टार्टिंग पॉइंट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज नोड नंबर 6.
Put a circle, node number 6. And then the last activity is G. क्यों G के बाद आगे आपके पास कोई भी रिकॉर्ड में दिया है? नहीं दिया है. So that means G is my last activity जो कि मुझे परफॉर्म करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. So that is your node number 7. So G will start when from the node जहाँ पे F complete हुआ है. F complete कहाँ हुआ है? नोड नंबर 6 पे. तो G कहाँ स्टार्ट होगा? नोड नंबर 6 से स्टार्ट होगा. और एंड कहाँ होगा? नोड नंबर 7 पे. So that is your the network diagram what we have made. Now अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि आपको ये क्या दिया हुआ है. So these are the early start and latest finish, right? तो जिसको हम चाहे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ट्राइंगल एंड स्क्वायर बना के बॉक्सेस हमेशा बना के लिख सकते हैं. अगर आप बॉक्सेस बना कर लिख रहे हो वेल एंड गुड, गलती होने की बिल्कुल चांसेस नहीं है. मगर अगर आप कंफर्टेबल हो लिखने के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो. बट हमेशा याद रखिए कि जो न्यूमरेटर में आप ऊपर जो लिख रहे होगे वो हमेशा बैकवर्ड पास के लिए लिखोगे, और जो नीचे लिखा है वो आप हमेशा फॉरवर्ड पास के लिए लिखा है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक फॉरवर्ड पास, राइट? फॉरवर्ड पास दैट मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नोड नंबर 1 एंड विल रीच अप टू नोड नंबर 7. तो कैसे करेंगे? नोड नंबर 1 पे क्या इससे पहले एक्टिविटी कोई परफॉर्म हुई है? प्रोजेक्ट नहीं हुआ है. तो कितना ड्यूरेशन है? 0 ड्यूरेशन के बाद कितना टाइम कंज्यूम हुआ एक्टिविटी के लिए? 2 मिनट. सो नोड नंबर 2 के आगे कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है? 2 मिनट के बाद, राइट? तो यहाँ से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक बी और एक सी. सो इंस्टेड ऑफ बी जो कंप्लीट होगा नोड नंबर 5 पे कंप्लीट होगा. बट नोड नंबर 5 पे हम 2 रास्ते से आ रहे हैं, एक बी से और एक ई से. तो इसलिए हम पहले किसको चेक करेंगे? नोड नंबर 3 को. सो इफ यू चेक द नोड नंबर 3, नोड नंबर 3 कब कहाँ पे कहाँ से आ रहा है? वाई एक्टिविटी सी. सी इज स्टार्टिंग एट 2 weeks, आफ्टर 2 weeks, and it is consuming 3 weeks more. So total duration it is consuming is 5 weeks. So the early start time, so denominator is my early start time and latest start time, right? So that is 3. So now we will go to the node number 4. So node number 4 is being reached through D. D के रास्ते समझा रहे हैं नोड नंबर 4 पे. D कब स्टार्ट हुआ है? 5 मिनट वीक के बाद. कितना टाइम कंज्यूम करेगा? 4 वीक्स. टोटल 5 + 4 9 वीक्स, राइट? 9 वीक्स इज बीन कंज्यूम. नाउ अब हम आएंगे नोड नंबर 5 पे. तो नोड नंबर 5 पे हम पहले चेक करते हैं बी का रूट. सो बी स्टार्ट हुआ 2 वीक के बाद, कंज्यूम किया 3 वीक. टोटल कितना हो गया? 5 वीक्स. अगर हम ई के रास्ते आ रहे हैं तो ई स्टार्ट हुआ 9 वीक्स के बाद और 8 वीक्स उसने कंज्यूम किया. टोटल कितना हो गया? 17 वीक्स. और वी नो दैट फॉरवर्ड पास में हमेशा जो मैक्सिमम टाइम है वो हम कंसिडर करेंगे. तो हमने कितना लिखा? 17 वीक्स, राइट? सो नोड नंबर 5 के आगे की एक्टिविटी कितने देर के बाद स्टार्ट हो सकती है? 17 वीक के बाद, 17 वीक्स के बाद. नाउ विल मूव टू नोड नंबर 6. नोड नंबर 6 के आगे एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? जब मेरा नोड 5 एक्टिविटी F कंप्लीट होगा. F स्टार्ट कब हो रहा है? 17 वीक्स के बाद. कंज्यूम कितना कर रहा है? 6 वीक्स. टोटल कितना हो गया? 23 वीक्स, राइट? नाउ सो द लास्ट node what we have is node number 7. so node number 7 पे रीच करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है? जी कब स्टार्ट हो गया? 23 मिनट्स वीक्स के बाद. कितना कंज्यूम हुआ? 2 वीक्स. टोटल कितने वीक्स लगे? 25 वीक्स, राइट? सो दैट वाज द फॉरवर्ड पास. सो आप ऐसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हो. सो वंस यू आर डन विद द फॉरवर्ड पास, नाउ वी नीड टू डू द बैकवर्ड पास. Now what is the backward pass is? We will start from end point. End point कितना होगा?
जो मेरा फॉरवर्ड पास का लास्ट वैल्यू है वही मेरे बैकवर्ड पास का पहला वैल्यू कहलाएगा. सो दैट इज 25 इज बीन कंसिडर्ड. Look, we'll go in the reverse order. 25 minus 2. It will give us 23. Now 23 minus 6. It will give you 17. Now 17 B पे अब यहाँ पे आपके पास रिवर्स ऑर्डर में हम जाएंगे E. So 17 minus 8 via E. Via E. That is reverse. We are moving on the reverse order. 17 minus 8. Again it will give you 9. We are good moving back. So 9 minus 4 that will give you 5. Right? 5. अब नोड नंबर हम 3 तक कंप्लीट कर लिया हमने. अब हम नोड नंबर 2 पे आ गए. 2 पे आने के दो रास्ते हैं, एक B से और एक C से. अगर मैं C के रास्ते से वापस आता हूँ तो 5 मिनट मेरे पास यहाँ पे है और यहाँ पे 3 मिनट मेरा ड्यूरेशन था. तो 5 माइनस 3 दैट इज गिव यू 2. अगर मैं B के रास्ते आ रहा हूँ तो कितना था यहाँ पे 17. ड्यूरेशन कितना है 3 मिनट. राइट. तो 17 माइनस 3 14. तो 14 और 3 में सॉरी 2 में कौन सा छोटा है 2. सो व्हाट वी विल कंसिडर इज 2. नाउ नोड नंबर ए 1 पे आने के लिए ए का रूट लेना पड़ेगा. ए कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 2 मिनट्स. तो 2 माइनस 2 is equal to 0. So latest start time is 0. So this is how we need to do forward pass and a backward pass. Now ये चाहे तो आप यहीं पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा. बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने का तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि किस किस रूट से अगर आप जाने पे आप कंसिडर कर रहे हो और आपका जो फ्लोट है वो 0 है. सो दैट वी कैन कैलकुलेट. सो वी कैन सी द नेटवर्क डायग्राम जो कि अभी हमने सॉल्व किया. यहाँ पे हमने अर्ली स्टार्ट टाइम भी निकाला है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाला है. और उसके बीच में फ्लोट कितना होगा वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है. बट अगेन विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टमेटिक वे, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल. एंड फ्रॉम दिस टेबल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेरा क्रिटिकल पाथ होगा और कौन सा मेरा क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी नहीं होगा और कितना ड्यूरेशन मुझे कंज्यूम होगा. सो इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. नंबर 1 इज़ एक्टिविटी, कितना टाइम उस एक्टिविटी को कंज्यूम हो रहा है. And then first we will see what are the things which is there in the forward pass. So we will see first what is how we are doing in the forward pass. Then इसी में हम देखेंगे backward pass और float. And then इसी टेबल में हम ये भी निकालेंगे कि हम कैसे कौन सा मेरा critical path हो कंसिडर होगा. So activities कौन कौन सी हैं A, B, C, D, E, F और G. And then time ड्यूरेशंस कितना उन्होंने कंज्यूम किया है, कितने वीक्स. सो ऑलवेज व्हेन वी आर डूइंग फॉर द फॉरवर्ड पास, किसके लिए हम कर रहे हैं फॉरवर्ड पास. दैट मीन्स हम किस में डील करेंगे, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में डील करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो सबसे पहला है एक्टिविटी ए. सो एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है. सो एक्टिविटी ए जो है वो कब स्टार्ट होगा, उसका 0 वीक्स पे स्टार्ट होगा. कितना टाइम कंज्यूम किया एक्टिविटी ए में, एक्टिविटी ए ने कंज्यूम किया है 2 मिनट, 2 वीक. सो पहले एक्टिविटी कितने वीक्स के बाद कंप्लीट होगी, 2 वीक्स के बाद. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट वी हैव इज बी. बी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, जब मेरा एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा. दैट इज फ्रॉम द नोड नंबर 2. सो दैट मीन्स नोड नंबर 2 का जो फिनिश पॉइंट होगा वही मेरा इसका क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा. सो 2 इज स्टार्ट पॉइंट फॉर बी. और कितना ड्यूरेशन यूटिलाइज कर रहा है 3 वीक्स का. तो कंप्लीट कब होगा बी एक्टिविटी 5 वीक्स के बाद. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज सी.
सी भी तभी स्टार्ट हो रहा है जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो रहा है। तो ए कब कंप्लीट हो रहा है? 2 वीक्स के बाद। सो सी का जो स्टार्ट वीक है वो भी क्या होगा? 2 होगा। और ये टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है? ड्यूरेशन 3 वीक्स का। सो द टोटल ड्यूरेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी सी कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 वीक्स। Now activity D. Now if you see the activity D is starting once the activity C has been completed. So C कब complete हो रहा है? 5 वीक्स के बाद. So the start for the D will be 5 weeks. कितना ड्यूरेशन चाहिए? 4 वीक्स का. तो 5 + 4 9 weeks. Now come to activity E. Activity E, if you see, is starting only after the activity D. तो D कंप्लीट कब हुआ? 9 वीक्स के बाद. सो स्टार्टिंग वीक कब होगा ई का? 9 वीक्स. एंड हाउ मच टाइम इट इज कंज्यूमिंग? इट रिक्वायर इज 8 वीक्स. सो 8 + 9 दैट इज योर 17 वीक्स. नाउ देन कम टू एक्टिविटी एफ. एक्टिविटी एफ. एक्टिविटी एफ कब हमारा स्टार्ट होगा? जब हमारा एक्टिविटी बी और एक्टिविटी डी दोनों और ई, ये दोनों बी एंड ई दोनों कंप्लीट हो. सो बी कब कंप्लीट हो रहा है? 5 वीक्स के बाद. और एक्टिविटी ई जो है वो कब कंप्लीट हो रहा है? 17 वीक्स के बाद. तो 5 और 17 में हायर कौन सा, लार्जर वैल्यू कौन सी है? 17. सो दैट मीन्स एक्टिविटी एफ विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 17 वीक्स, राइट? क्योंकि एफ एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब एक्टिविटी बी और ई दोनों कंप्लीट हो चुका हो. बट एक्टिविटी बी 5 वीक के बाद ही कंप्लीट हो चुका था. सो 5 वीक से लेकर 17 वीक तक उसको वेट करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर एक्टिविटी एफ विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ई. नाउ एक्टिविटी ई विल स्टार्ट इन 17 वीक्स. कितना वीक्स ड्यूरेशन चाहिए से? 6 वीक्स का ड्यूरेशन चाहिए. 17 + 6 23 वीक्स. Now in these 23 weeks, that means the activity G will start only after activity F is been completed. So F is completed कितने वीक्स के बाद? 23. So G start कब होगा? 23 वीक्स के बाद. कितना ड्यूरेशन चाहिए? 2 वीक्स का. So 23 + 2 that will give you 25. So that means total time जो कि सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए चाहिए फ्रॉम एक्टिविटी ए से लेकर बी सी डी ई एफ एंड जी, जो कि मेरा लास्ट एक्टिविटी है, कितना चाहिए? 25 वीक्स की रिक्वायरमेंट है. सो ये तो हो गया हमने फॉरवर्ड पास से निकाले, जो कि हमने पहले भी जैसा किया था. नाउ वंस वी आर डन विद योर फॉरवर्ड पास, वी नीड टू सॉल्व फॉर बैकवर्ड पास. बैकवर्ड पास में क्या आता है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम. ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फॉरवर्ड पास में आएगा. लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश बैकवर्ड पास में आएगा. अर्ली स्टार्ट फॉरवर्ड पास में हम स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेशन हम कब करेंगे? ओरिजिन से. कहाँ तक जाएंगे? एंड पॉइंट पे. बैकवर्ड पास जिसमें हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एंड पॉइंट से करेंगे. और कहाँ पे आकर रुकेंगे? ओरिजिन पे आकर रुकेंगे, राइट? सो सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना चाहिए? हमने फॉरवर्ड पास से देखा, मैंने देखा 25 वीक्स चाहिए. सो जी एक्टिविटी कब वो स्टार्ट होगी? लेटेस्ट स्टार्ट होगा जब मैं लेटेस्ट फिनिश में से उसका ड्यूरेशन माइनस कर दूँ. ड्यूरेशन कितना है? 2 वीक्स. तो 25 - 2 दैट इज योर 23 वीक्स. नाउ सी द एक्टिविटी एफ. एक्टिविटी एफ जी से ठीक पहले है. सो दैट मीन्स जी एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम होगा वही एफ का क्या होगा? फिनिश टाइम होगा. सो 23 और ड्यूरेशन कितना है? 6 वीक्स. सो 23 - 6 दैट इज 17 वीक्स. सो दैट मीन्स कम से कम 17 वीक चाहिए एफ की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड पास. देन कम टू एक्टिविटी ई. एक्टिविटी ई जो है वो खत्म कब होगा? जब जिस पॉइंट पे एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगा. सो एक्टिविटी एफ स्टार्ट क्या है? 17 वीक्स. और 8 वीक्स का ड्यूरेशन है किसके? एक्टिविटी ई का. 17 - 8 इट विल बिकम 9. नाउ नेक्स्ट
प्रीवियस एक्टिविटी इज डी। डी का जो ओरिजिन पॉइंट है, डी कहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे ई का स्टार्ट होगा। सो डी का एंड पॉइंट विल बी सेम एज ई स्टार्ट पॉइंट। नाउ हाउ मच ड्यूरेशन इज 4 weeks, so 9 minus 4 that is your 5 weeks. Now C एक्टिविटी, सी एक्टिविटी कब एंड होगा, उसका फिनिश पॉइंट क्या होगा, जो कि डी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो दैट इज योर अगेन 5. नाउ ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड इज 3. 5 minus 3, so that is your 2 weeks. So that means एक्टिविटी सी कब स्टार्ट होगा, 2 वीक से के बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकता है। नाउ कम टू एक्टिविटी बी। नाउ एक्टिविटी बी जो है वो कब स्टार्ट होगा, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नोड नंबर 2। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली चीज, दो नोड नंबर 2 है, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सी और बी दोनों का। तो सी जो था बट बैकवर्ड पास से आ रहे हैं, सो सी का जो एंड पॉइंट है वो क्या था, डी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसी तरह से बी का जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, किसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एफ का, क्योंकि बी और एफ यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, दैट इज फ्रॉम द नोड नंबर 5। सो एफ का जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वही क्या होगा, बी का फिनिश पॉइंट कहलाएगा, राइट। जो एफ का स्टार्ट पॉइंट है वो बी का फिनिश पॉइंट। ना बी के लिए कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, 3। सो 17 minus 3 is 14. नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर ए। एक्टिविटी नंबर ए का जो फिनिश पॉइंट क्या होगा, क्योंकि वो उस जंक्शन से जब आपका बी स्टार्ट होगा और सी स्टार्ट होगा, इन दोनों में से एक कंसिडर होगा ए का फिनिश पॉइंट। अब बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, 14, और सी का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 weeks। तो बैकवर्ड पास में हमेशा हम वो कंसिडर करते हैं जो कि स्मॉल हो, फॉरवर्ड पास में क्या कंसिडर करते हैं, जो लार्ज हो, बैकवर्ड में जो स्मॉल हो। तो 14 और 2 दोनों में स्मॉल कौन सा है, 2। सो विल कंसिडर 2 एज द फिनिश पॉइंट फॉर एक्टिविटी ए, एंड ड्यूरेशन कितना है, 2 minus 2 दैट इज योर 0। सो ये तो हमें मिल गया फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड पास में विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एक्टिविटी ए टू जी लास्ट एक्टिविटी, and in backward pass we'll start from last activity to the first activity. Now once we have identified latest start, latest finish, early start, early finish, we need to find out a float. float का मतलब ये होगा कि किस एक्टिविटी के में मैं डिले कर सकता हूँ या फिर वो वेट कर रहा है अगले किसी दूसरी एक्टिविटी के ख़त्म होने का, मतलब वहाँ पे एक बफर एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है। तो जिस भी एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट फ्लोट वी कैन आइडेंटिफाई बाय द टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ये तो एक तरीका है। दूसरा हम कर सकते हैं लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, ये 2 तरीके हैं जिससे आप फ्लोट हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट फिनिश के थ्रू। नाउ इफ यू सी लेटेस्ट स्टार्ट फॉर एक्टिविटी ए इज 0 एंड अर्ली स्टार्ट इज 0, तो डिफरेंस इज 0. Now if you see for latest start for activity B is 14 and for early start for activity B is 2. So 14 minus 2 that is equal to your 12. Similarly we'll see for C, latest start is 2 and early start is also 2.
So difference is 0. Activity D, latest start is 5, early start is 5. Difference is 0. Activity E, latest start 9, early start 9. Float is 0. No buffer time is available. For activity F, latest start is 17. Early start is 17. So difference is 0. And last activity G, latest start is 23 and early start is 23. So the float is 0. Now we need to see on the column of float किसकी वैल्यू 0 है. तो जो भी जिस भी एक्टिविटी के फ्लोट की वैल्यू 0 है वो सारी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा होगा. So that will be considered for your critical path. Now if you see this particular table, except B, सबकी फ्लोट की वैल्यू क्या है? 0 है. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम क्रिटिकल पाथ डिफाइन करेंगे उसमें एक्टिविटी बी को कंसिडर नहीं करेंगे. सो मेरा क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, क्योंकि बी कंसिडर नहीं करना है हमें, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ एंड एक्टिविटी जी. सो एक्टिविटी ए, सी, डी, ई, एफ, जी इज द पार्ट ऑफ माई क्रिटिकल पाथ. राइट? क्यों क्रिटिकल पाथ है? क्योंकि इन सब की फ्लोट की वैल्यू क्या है? 0 है, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ फ्लोट ऑफ बी. इसलिए एक्टिविटी बी को हम क्रिटिकल पाथ में कंसीडर डायग्राम में नहीं करेंगे. क्रिटिकल पाथ में क्या क्या आ रहा है? ए, सी, डी, ई, एफ और जी. बट बी जो है वो क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका फ्लोट जो है वो 0 नहीं है. यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम है, इसलिए बी जो है क्रिटिकल पाथ में कंसिडर नहीं किया जाएगा. नाउ आफ्टर मेकिंग दिस टेबल एंड द डायग्राम, हम जो भी मेरा क्रिटिकल पाथ है उसको हम इस तरह से दो लाइन से या एक बोल्ड लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं. ये बोल्ड लाइन या 2 लाइन हमें इंडिकेट करेगा कि ये मेरा क्रिटिकल पाथ है. नाउ क्रिटिकल पाथ दैट इज एक्टिविटी नंबर 1 to 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. कौन कौन सी थी? ए, सी, डी, ई, एफ, जी. एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन कितना चाहिए? 2. 3 का ड्यूरेशन था 3 वीक्स. सी का ड्यूरेशन 3 वीक्स. डी का ड्यूरेशन 4 वीक्स. 5 का ड्यूरेशन है 8 वीक्स. एफ का ड्यूरेशन है 6 वीक्स. जी का ड्यूरेशन है 2 वीक्स. तो टोटल कितना हो गया? 25 वीक्स. तो मेरे को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितना चाहिए? मैक्सिमम लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर 25 वीक्स. नाउ इसी को हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी कहते हैं और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कहते हैं. नाउ विल सी अ फ्यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड. अब तक हमने इसको सॉल्व किया, फाइंड आउट किया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. Then we need to also know what are the various benefits are. Now CPM is used the various levels of the project management and it is very simple क्योंकि हम आसानी से एक डिसीजन ट्री की तरह हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं. हम क्रिटिकल पाथ हमें मिल जा रहा है कि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा बॉटलनेक है, राइट, फ्लोट्स कितने हैं, एंड देन वी कैन ऑल्सो मैनेज द कॉस्ट फैक्टर्स. एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है कि ये बहुत ईजी है एक्सप्लेन करना और समझना. आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता. यू कैन ईजिली सी एंड आइडेंटिफाई. जैसे कि हर प्रोसेस, हर एक्टिविटीज़ का अपना बेनिफिट होता है तो एक उसका लिमिटेशन भी होता है. सो लिमिटेशंस आर, नंबर 1 इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स शुड बी वेरी क्लियर कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी और इनके बीच का ड्यूरेशंस क्या है. इसमें कोई कंफ्यूजन या नहीं होना चाहिए. अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आपका पूरा नेटवर्क डिसीजन डायग्राम गलत हो जाएगा. एंड देन जो टाइम हमने वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है वो हमारे जजमेंट के बेसिस पे होता है, क्योंकि ये तो हम पहले ही कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की
कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम होगा या कितना लग सकता है, ये हम अपने जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्जैक्टली कंसिडर कर लेते हैं, या फिर जो हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड होता है सिमिलर प्रोजेक्ट्स के उसके थ्रू. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द लिमिटेशन इज. एंड देन द टास्क फैक्टर जो कि एक्सप्लेन किया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम जो है वो कंपेरेटिवली जो गैन चार्ट में हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स क्लियर नहीं है, राइट. सो जो क्लैरिटी है मूवमेंट का और टाइम का एक साथ, वो कभी कभी ग्रैंड चार्ट में ज़्यादा मिल जाता है, बेटर समझ में आता है. सो दैट हैज़ दीज थ्री लिमिटेशन व्हाट यू कैन यूटिलाइज, you can say about critical path method. I hope you have understood the basic fundamental of your critical path method, as well as you have understood the terminology which is being used. Apart from these, a one way through which we can identify the longest path of any project, what is the maximum duration which is required, the project completion time, right? And that is how we can do it for critical path method. Thank you very much, and in the next episode we will be see what is a PERT, project evaluation review technique. Usually the terminology will remain same, only the formula will be a difference that we'll see in the upcoming videos. Thank you very much.